टुडे वील बिगिन विद द सेकंड चैप्टर दैट इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो ये वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स द नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो लेट अस बिगिन विद द रीडिंग. In the previous unit, you were introduced with the concept of immunology. You have also learned the first vaccine were developed. The first vaccines were developed. You're already aware that an immunological sense world is divided into self and non-self, with the non-self being pathogens. तो हमारी बॉडी सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर देती है सेल्फ और नॉन सेल्फ को, और नॉन सेल्फ में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और जितने भी पैथोजेंस होते हैं. In the previous unit, we introduced the concept of innate and adaptive immunity as well as the main immune system. Once a pathogen attacks the host, immediately the immune system is activated. As you recall from Unit 1, that innate immune system creates a barrier that prevents antigens like pathogen, virus, bacteria, parasites, and other foreign particles from entering the body or weakens them so that they are unable to spread in the body. तो basically अगर हम बात करें innate immunity में main जो चीज़ काम करती है that are the barriers. Barriers हैं जो pathogens को या antigens को हमारी body के अंदर enter नहीं करने देंगे. This is only possible if the cells of innate immunity are able to recognize the antigen. Although you learned about immune system in Unit 1, we'll focus on the innate immunity in this unit. So let us directly begin with the main topic, that is the innate immunity. Innate immunity is the immunity we are born with and is the first line of defense in our body. It is non-specific in nature, या antigen dependent नहीं होती, meaning if it protects you from all the antigens. Innate immunity acts as a barrier that keeps the harmful antigens or pathogens from entering the body. There are types of defensive mechanisms in innate immunity. So these are basically जो barriers होते हैं वो anatomical भी होते हैं और physiological भी होते हैं. उसके अलावा barrier के अलावा एक mechanism होता है phagocytosis, and the next one is induced response. So the first one, anatomical barriers. The anatomical barriers include the skin and the surface of mucous membrane. जितनी भी हमारी skin है और हमारी mucous membrane मतलब हमारा respiratory tract जो है वो पूरा. The skin and the mucous membrane block the entry of most microorganisms. You all know that skin consists of two distinct layers: the outer layer epidermis and a thick inner layer that is dermis. Our epidermis protect us from UV rays, pathogens and chemicals, and the keratin protein present in the epidermis keeps our body hydrated. हमारी बॉडी में जो keratin protein है वो बेसिकली nails में जहाँ हमारे hairs है वहाँ पे present है. Apart from that हमारी बॉडी के अंदर जो oil glands present होते हैं, जो sweat glands present होते हैं, इनकी भी जो secretions होती हैं उनका pH बहुत low होता है. तो that low pH, that acidic pH जो है, that prevents the entry of microbes into our body. So the sebaceous gland present in the hair follicle in the dermis produce sebum which is oily in nature and maintain the pH of the skin between 3 and 5. तो इसकी वजह से हमारा जो स्किन का pH रहता है वो 3 और 5 के बीच में रहता है. The acidic pH prevents the growth of most microorganisms, so the entry of pathogen will occur if there is a break in the skin. अगर हमें स्किन में इंजरी होगी, वूंड होगा, तभी वो पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा. The internal organs like GI tract, respiratory tract and urinary tract, they are lined by mucous membrane. तो हमारी बॉडी की जो अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पे mucous membrane present है. म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो वो सिक्रीट करती है म्यूकस जो कि बैक्टीरिया को ट्रैप भी करता है और साथ में कुछ एंटीवायरल और बैक्टीरियल सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज हाउ इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बैरियर, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. अब फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि कुछ ऐसे बैरियर जो पैथोजन को बॉडी से सेपरेट करें थ्रू फंक्शनल पैरामीटर लाइक चेंज इन टेम्परेचर, पीएच या फिर कुछ केमिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सम पैथोजेंस. व्हेन वी आर इन्फेक्टेड वी गेट फीवर. तो ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है ये इनहिबिट कर रहा है, किल कर रहा है कुछ बैक्टीरियाज को. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी बॉडी के अंदर अगर हम पीएच की बात करें तो कई कई ऑर्गन्स में जैसे स्टमक में पीएच है 2, एसिडिक होता है ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वहाँ पे भी पैथोजन के लिए बैरियर है कि वंस अगर वो स्टमक तक फूड के थ्रू पहुँच भी गए तो एसिडिक पीएच में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो वहीं पे किल हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर केमिकल दैट इज लाइजोजाइम. दीज आर हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम जो हमारी म्यूकस सिक्रीशन में होते हैं, टीयर्स में होते हैं, सलाइवा में होते हैं, जो पैथोजन को किल करते हैं बाय हाइड्रोलाइजिंग देयर सेल वॉल. In the eye and urinary tract, there is rapid flow of secretion. The rapid flow of secretion causes constant washing and flushing, which makes it difficult for microbes to enter through these रूट्स. अगर हमारी आइज़ में हल्का सा भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई चीज़ चली जाती है तो हमारी आंखों से पानी या टीयर्स आने लग जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जितने भी पैथोजन या फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो सारे हमारी आइज़ से फ्लश आउट हो जाते हैं. अपॉन ब्रीच ऑफ अबव बैरियर्स, इन किसी भी बैरियर के ब्रीच की वजह से अगर ये कोई भी बैरियर ब्रेक हो गया तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि पैथोजन्स हमारी बॉडी के अंदर इन्वेट कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे. तो उसके बाद के जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो होंगे फैगोसाइटोसिस एंड अदर इंड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज. तो एक बार देखते हैं कि फैगोसाइटोसिस और अदर इंड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज में हमारे पास क्या क्या है.
द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनेट डिफेंस मैकेनिज्म इज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हमारी बॉडी का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आफ्टर ब्रीच ऑफ द बैरियर ऑफ पैथोजन दे आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय द सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। और वो सेल्स हमारे कौन से हैं? फैगोसाइटिक सेल्स। और फैगोसाइटिक सेल्स में हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स। दे रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस, इंटरनलाइज देम और किल देम। अगर आपको फैगोसाइटोसिस के बारे में नहीं पता तो आई विल पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो सो दैट यू कैन स्टडी दैट। और फैगोसाइटोसिस के बारे में अगर हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ें, द टर्म फैगोसाइटोसिस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फैजन विच मीन्स टू ईट और डिवर एंड साइट डिनोटिंग सेल। दैट मीन्स ऐसा सेल जो बाकी सेल्स को ईट करते हैं। Phagocytes are like security guard that circulate throughout the body looking for potential threat like bacteria, virus and engulf them and destroy them. अगर हम वन बाय वन फैगोसाइट्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट फैगोसाइट है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन आर बॉडी। दे आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन पायोजेनिक और पस फॉर्मिंग इन्फेक्शंस। पायोजेनिक बेसिकली होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। These cells are the first one to reach the site of invasion by chemotaxis। ये सेल सबसे पहले साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचेंगे बाय कीमोटैक्सिस, मतलब कि कुछ केमिकल्स की सिग्नलिंग के थ्रू ये सेल्स वहाँ पे पहुंचेंगे। दे आर रिच इन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। दी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स कंटेन peroxidases, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड lysozymes. The cytoplasmic granule fuse with the phagosome to form phagosome and the enzymes in it to kill the pathogen। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है ना, जो फैगोसोम के अंदर है, ये फ्यूज़ कर जाते हैं उस पैथोजन के साथ। और जब ये उस पैथोजन के साथ फ्यूज़ करते हैं तो ये उस पैथोजन की किलिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देखो, डायग्राम के अंदर हमें इजीली नज़र आ रहा है फैगोसोम। जब ये फैगोसोम जो है, ये फैगोसोम बेसिकली कैसे बना? जब उन्होंने पैथोजन को इंटरनलाइज करा तो पैथोजन को इंटरनलाइज करने के बाद वो जो वैक्यूल बना वो लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ हो गया, और दोनों फ्यूज़ होने के बाद क्या बन गए? फैगोलाइजोसोम। And that helps in phagocytosis. Moving on to the next cell that are monocytes। monocytes या फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस भी हम इसको बोलते हैं। monocytes and macrophages are efficient phagocytic cells. Monocytes circulate in blood and can leave the circulatory system by moving across the wall of capillary vessel to become macrophages। जब तक ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं हम मोनोसाइट्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर मोनोसाइट्स ब्लड से निकल के टिश्यूज या ऑर्गन्स में चले जाए तो वहाँ पे हम इनका नाम देते हैं मैक्रोफेजेस। अगर आपने मैक्रोफेजेस के बारे में भी डिटेल में पढ़ा होगा या आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि उसमें हमने मैक्रोफेजेस, स्पेशलाइज मैक्रोफेजेस के अलग अलग नाम देखे थे। हमने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में भी ये पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गन में मैक्रोफेजेस का अलग अलग नाम होता है। द एबिलिटी टू रोम outside of the circulatory system is important because it allows macrophages to hunt pathogens with fewer restriction। तो इसका ब्लड स्ट्रीम से निकल के दूसरे ऑर्गन तक जाना इंपॉर्टेंट है ताकि ये अलग अलग पैथोजन को इनकाउंटर करके उनको किल कर सकें। मैक्रोफेजेस ऑल्सो रिलीज साइटोकाइंस इन ऑर्डर टू सिग्नल एंड रिक्रूट अदर सेल्स टू द एरिया ऑफ पैथोजन। मैक्रोफेजेस खुद तो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब किसी भी एंटीजन को या पैथोजन को इनगल्फ करके उसकी किलिंग करेगा, प्लस इसके साथ ही कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज करेगा सो दैट बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट कर सके और न्यूट्रोफिल्स को बुला सके, मैक्रोफेजेस को बुला सके, अगर ज़रूरत पड़े तो बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशन भी हो सके। In figure 2.2a and b, you can see the diagrammatic representation of monocytes and macrophages. You already know that macrophages are larger 5 to 10 times than monocytes। अभी हमने पढ़ा है कि monocytes जो हैं अगर वो ब्लड स्ट्रीम से निकल के टिश्यू में चले जाए तो वो macrophages हो जाते हैं। बट एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दिस इज नॉट अ वन फोल्ड प्रोसेस। ये कितना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसमें नियरली 10 to 20 चेंजेस होते हैं मोनोसाइट्स के अंदर। उसका साइज इनलार्ज होता है, उसका न्यूक्लियस इनलार्ज होता है, उसके जो एंजाइम्स है उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो देर आर many changes which result in the formation of macrophages। सो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें, the first one is the picture of the monocyte which is nearly small and the second one is the picture of a macrophage। और अगर आप macrophage में देखोगे यहाँ पे हमें जो cellular processes है वो भी ज़्यादा दिख रहे हैं ताकि ये पैथोजन को पैथोजन इनकाउंटर होने पर उसको ईजिली ट्रैप कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एओसनोफिल्स। एओसनोफिल्स की अगर हम बात करें तो ये भी फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन ये हेल्प करते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन में। एओसनोफिल्स आर WBCs दैट आर एक्टिवेटेड इन हेलमिंथिक इन्फेक्शन। हेलमिंथिक इन्फेक्शन का मतलब होता है मेनली वर्म्स अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगे, पैरासाइट्स एंटर होंगे तो उस केस में जो WBCs एक्टिवेट होते हैं दैट आर मेनली एओसनोफिल्स। दे फैगोसाइटोसिस हेलमिंथिक पैरासाइट्स एंड डिस्ट्रॉय देम विद द हेल्प ऑफ देयर टॉक्सिक प्रोटीन्स एंड फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट इन देयर granules। The next WBCs are basophils and mast cell। basophils जो होते हैं वो अगेन ग्रैन्यूलोसाइट से अटैक करते हैं पैरासाइट्स को। बेसोफिल के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनमें हिस्टामीन होता है तो ये हिस्टामीन रिलीज करते हैं। द यूज ऑफ हिस्टामीन मेक बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स की प्लेयर इन माउंटिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो वो इन हिस्टामीन ग्रैन्यूल्स की वजह से कॉज होता है बॉडी के अंदर। द नेक्स्ट सेल्स आर नेचुरल किलर सेल्स।
नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो भी टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं. ये लार्ज लिम्फोसाइट्स हैं जिनके ऊपर सरफेस मार्कर्स प्रेजेंट नहीं होते. तो नेचुरल किलर सेल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अर्ली इनेट रिस्पॉन्स. दे कंटेन साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स एंड प्रोड्यूस साइटोकाइंस. इनके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं और इंटरफेरॉन्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दे टारगेट वायरस. जितने भी यूजुअली जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो वायरस को टारगेट करते हैं. तो क्योंकि ये इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट मीन्स ये वायरस या ट्यूमर्स को टारगेट कर रहे हैं. और कॉम्प्रोमाइज होस्ट सेल्स can signal natural killer cells for destruction through the expression of specific receptors and antigen presentation. और उसके अलावा भी कभी कभी होस्ट सेल्स के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स निकल के सिग्नलिंग करते हैं सो दैट इनके सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए और डिस्ट्रक्शन कॉज करें. द नेक्स्ट सेल्स आर डेंड्रिटिक सेल्स. डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ये भी एक तरीके के एपीसीज हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. सो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. दे आर प्रेजेंट इन एपिथेलिया एंड टिश्यू स्पेसेस ऑफ द बॉडी जैसे कि इनर म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द नोज, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन. इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो इनगल्फ करते हैं माइक्रोब को. आफ्टर इनगल्फिंग माइक्रोब डेंड्रिटिक सेल्स मैच्योर, डिग्रेड द माइक्रोब एंड एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, स्टिमुलेटिंग द एडाप्टिव इम्यूनिटी. अगर एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रही है, अगर कोई भी जो मैक्रोफेज है या फैगोसाइटिक वाला सेल है, अगर वो एंटीजन को ब्रेक करके उसको एमएचसी मॉलिक्यूल के ऊपर एपीसी एंटीजन प्रेजेंटेशन कर रहा है तो वो एंटीजन प्रेजेंट किसको कर रहा है? टी सेल्स को. और अगर टी सेल्स या बी सेल्स एक्टिवेट हो रही हैं तो दैट मीन्स कौन सी इम्यूनिटी स्टार्ट हो रही है? अडेप्टिव इम्यूनिटी. ओके जी. यहाँ पे हमने सारे सेल्स की बात करी. अगर आप देखो यहाँ पे हमने बात करी न्यूट्रोफिल्स की. वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल, नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक सेल्स. लेकिन एक सेल्स की हमने यहाँ पे बात नहीं करी और वो सेल्स हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट्स. और इनकी बात हमने क्यों नहीं करी? क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर मेनली इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यूनिटी. तो दैट मीन्स ये जितने भी सेल्स हमने पढ़ी है किस में रोल प्ले कर रहे हैं? इनेट इम्यूनिटी में. तो जब अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात आएगी तब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में और भी सेल्स पढ़ेंगे जो इनेट में भी काम कर रहे हैं बट वो अडेप्टिव में भी काम कर रहे हैं. तो मूविंग ऑन फर्दर, द नेक्स्ट टॉपिक इज फैगोसाइटोसिस. तो अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करें, वंस द पैथोजन क्रॉसेस द फिजिकल बैरियर, एक बार पैथोजन जो है वो फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लेगा, टिश्यू के अंदर एंटर हो जाएगा, तो क्या होगा? तो जो फैगोसाइट है वो उसको इंटरनलाइज कर लेगा, मतलब कि इनगल्फ कर लेगा. इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय वाइड वेराइटी ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन सेवरल सेल्स. अब पहली चीज़ तो ये आती है, अगर वो सेल के अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो फैगोसाइट को कैसे पता चला कि ये एक फॉरेन एंटीजन है, ये एक फॉरेन सेल है? तो हमारे सेल्स के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं PRR, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स. तो ये रिसेप्टर्स जो हैं वो पैथोजन के कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न जो पैथोजेनिक सेल पे या फॉरेन सेल्स पे प्रेजेंट हो सकते हैं बट हमारे सेल पे प्रेजेंट नहीं है. ये ऐसे पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनके पास ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये एक फॉरेन एंटीजन को फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. सो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स. सो सोल्यूबल एंड मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स. अगर हम सोल्यूबल और मेम्ब्रेन एसोसिएटेड रिसेप्टर्स की बात करें, यू वर इंट्रोड्यूस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. यू मस्ट नो दैट innate immune system does not recognizes human cells. However, the immune system recognizes molecular structure pattern present on the pathogens. तो वो कुछ ऐसे molecular patterns को recognize कर रही है जो सिर्फ पैथोजन पे प्रेजेंट हो, तो इनको बोलते हैं पैथोजन एसोसिएटेड विद molecular patterns. तो PAMPs, these are recognized by receptors which are either soluble or present on the cells. तो ये जो कुछ जैसे PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न में, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पैथोजन के ऊपर प्रेजेंट हो. इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है लिपोपॉलीसेकेराइड जो कि प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में. ठीक है जी. और ये जो इनको जो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. अब ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर्स सॉल्यूबल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये रिसेप्टर हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट हो या फिर सेल के अंदर ना प्रेजेंट हो कि ये भी हो सकता है कि ये रिसेप्टर्स हमारी सेल की सरफेस पे प्रेजेंट हो. सो even when a cell dies, some endogenous danger molecules are released from dying cells called damage-associated molecular patterns. DAMs activate the innate immunity. Receptors that recognize PAMs and DAMs are pattern recognition receptors. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल्स मर भी रही है, मान लो पैथोजन की वजह से, किसी भी वजह से, तभी उनसे कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न रिलीज होंगे. इन दोनों पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, PRR, इनको रिकॉग्नाइज करेंगे और इसकी वजह से फिर इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा. तो जो PRRs होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, लाइक एसिड सॉल्यूबल या फिर मेम्ब्रेन एसोसिएटेड. द पैथोजन इन ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सॉल्यूबल PRRs. मेजर सॉल्यूबल PRRs आर नेचुरल एंटीबॉडीज, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कलेक्टिन्स एक्सेट्रा. द सॉल्यूबल PRRs एक्ट बाय टू मैकेनिज्म. तो ये जो सॉल्यूबल PRRs हैं ये दो तरीके से काम कर सकते हैं. ये जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे? या तो ये अटैच हो जाएंगे माइक्रोब की सरफेस से
और इन्हांस कर देंगे फैगोसाइटोसिस को। द सोल्यूबल PRRs लाइक सी रिएक्टिव प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्सेट्रा बाइंड विद द माइक्रोब्स कॉल्ड ऑप्सोनेंस, और ये जो जब ये फैगोसाइटोसिस को इन्हांस कर देंगे तो प्रोग्राम फैगोसाइटोसिस के लिए एक वर्ड होता है ऑप्सोनाइजेशन, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑप्सोनाइजेशन। उसके अलावा दे ऑल्सो प्रमोट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन एसोसिएटेड PRRs की, तो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड PRRs जो होते हैं वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं डिपेंडिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड स्पेसिफिसिटी। तो अलग अलग जो मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई प्रेजेंट है तो उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी स्पेसिफिसिटी जो है वो अलग अलग होगी। तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत सारे सर्फेस रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि TLRs जिनको हम बोलते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर C टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स CLRs। उसके अलावा हमारे पास है नॉट लाइक रिसेप्टर्स, ये हैं NLRs। अगर हम बात करें TLR की, TLR जो होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, मतलब सेल की पूरी मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर रहा होता है। And 11 type of TLR have been identified so far. They can detect a broad variety of pathogens like virus, bacteria, fungi, protozoa, etc. Another type of membrane-associated PRRs are node-like receptors, which are similar to TLR and recognize bacterial peptidoglycan. CLR, that is C-lectin receptors, recognize carbohydrates on the microbial surface and induce phagocytosis. CLRs are both soluble and membrane-bound PRRs. अब अगर उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ने किसी भी एंटीजन या पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लिया एज नॉन सेल्फ, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा phagocytosis का स्टेप. So from this we'll continue in the next part. So stay tuned and study well. Thank you.